Sir, I've been listening to you for such a long time, and I've been following you since you have started this Crime Free Bharat. And we are very fortunate to have you having this kind of mission that would definitely create a crime-free society and lead us towards the ultimate goal of that is the utopian society, right, sir? And I've been listening to you this in this session from the very first moment, and of my questions are already been answered by a profound speaking, by a profound lecture, by a points. There, but rather there are certain points that I want some clarifications. These are in my mind, so if you permit me, I want to ask. Uh, Please. yes, yes, sir. Thank you so much, sir. Sir, as the system has been started, the Prime Minister in 2014 inaugurated the Smart Police mission, and the 3 points were the infrastructure of the policing, and the legislative and administrative reforms, and third one was the technological scaling up. So your mission is basically targeting all of three, but specifically for the technological scaling up of that smart policing, right? So and you had already rightly pointed out that National Authority of Scientific and Technological Assistance in Investigation, that would be, I think, the ultimate repository for all the information that's been gathered up, and that all would be by the blockchain, the management system. So that's a completely unhackable system. So that's kudos to you. Um, but my question is, the very genuine question is, ultimately, who would be the आई मीन ये जो रिपोजिटरी है, ये जो नेशनल अथॉरिटी है, अंडर हुज अथॉरिटी इट वुड बी वर्किंग? Is it working under the government, or it would be a independent authority, so No, that its integrity can be assured, sir? this authority is certainly will be under, it will be created under constitution. It will be a statutory body. It will Right. be, everything is under government. So it will be certainly under government. It can be, depending upon your suggestion, we can bring in whatever the independence you further feel. But otherwise, it is independent, because the power of investigation that rest with the police, right? So it is with the Right. police. So this body is a technical जो है ना hub, और ये पूरा चमत्कार जो है, और ये जनता को इंटीग्रेट कर रही है, और जनता को भी 130 करोड़ लोगों को इंटीग्रेट कर रही है. फिर जो है ये टेक्नोलॉजी को इनकरेज कर रही है थ्रू पीपीपी मॉडल. So Right. technology is also being taken care of to a great extent, and then it is creating modules and solution जो कि इसमें रहे, जो है ना इसमें अपलोड होंगे. और ये जो अथॉरिटी है, इसमें नेशनल अथॉरिटी है, एंड देन इसका एक्सटेंशन स्टेट अथॉरिटी भी है. So they are having all kind of the responsibility, and they would be in position to even not only support the police, they will be supporting volunteers for non-cognizable offences, which will be put up in court under section 200 to 204 of the CRPC. तो ये चमत्कार केवल कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में नहीं करेगी, बल्कि ये चमत्कार जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में करेगी. आगे चल के तो हम जो है ना सिविल केसेस को कैसे करें, हाउ वी कैन जो है ना हेल्प इन आर्बिट्रेशन आल्सो. तो हम जो है ना बेसिकली वी विल ट्राई टू मेक ए डिस्प्यूट फ्री सोसाइटी. क्योंकि अभी अपन क्राइम फ्री कहते हैं, तो कई बार हमारी सोच जो है ना वो केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस तक सीमित होती है. फिर अपन उसमें कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, सिविल डिस्प्यूट सभी को जो है ना समेट लेंगे. एंड इफ दैट हैपेंस, तो हमारी पूरी एनर्जी जो है ना वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चली जाएगी. एंड कपल्ड विथ the other initiative like Job and Services Rich India, Green Herbal and Nutrition Medicine Free India, that will be transforming our lives. That's why I am saying this initiative, if accepted by the government, it will change the face and fate of this country. अब सवाल उठता है कि यदि इतनी बड़ी चीज है, तो सरकार क्या इसको मना कर सकती है? तो यदि हम इसको जनता के सभी लोगों में वो अवेयरनेस पैदा कर लें, एक जन आंदोलन का रूप कर लें, और जब सरकार को ये महसूस होगा
कि साहब इतने लोग जुड़े हुए हैं, ये सब चाह रहे हैं, तो जी। इंद्र का जैसे सिंहासन हिलता है ऐसा उसे अपना सिंहासन भी हिलते दिखाई देगा कि तो वो जरूर इसको करेगी। उसको ना करने की जो हिम्मत है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि नहीं तो फिर उसका सिंहासन हिल जाएगा। और जी। हर किसी को अपने सिंहासन की चिंता होती है, इसलिए आई एम डबली और ट्रिपली श्योर कि दिस इज गोइंग टू हैपन। राजी तो राजी, नहीं तो कुराजी। या प्लीज। Yes, हाँ। शास्त्री सर के पास शायद कोई क्वेश्चन है सर, आप प्लीज पूछिए जी सर। जी जी जी, प्लीज अनम्यूट शास्त्री जी। Yeah, there's a question that should not go unnoticed. When we talk of crime-free Bharat, we are talking of ensuring that there is an FIR, there is a prosecution, there is the whole machinery is set in motion because of what we are going to create. Suppose the FIR is there, the investigation begins. So that one aspect where cases are kept on a back burner when it comes to investigations. Cases are closed and it is shown as, we even have the Hawala case. The Supreme Court judgment says, due to lack of evidence, the case was closed. Now, who's going to create the evidence? Who's going to chase the evidence? Who's going to put it before? What about the anti-corruption law and the entire there's so much happening which is the common man is not concerned about it. It is only some activists who go through RTIs, who chase, who find out, who uncover scams, and then the process is on. How are we going to tackle this kind of a situation, and how are we going to engage in this kind of a situation? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। मैं शास्त्री जी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपने बहुत ही अच्छा और सटीक क्वेश्चन पूछा है। देखिए, चाहे हम एंटी करप्शन से का क्राइम करें या करप्शन का क्राइम कहें, चाहे साइबर क्राइम कहें, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग क्राइम करें, ये जो है क्राइम के हिस्से हैं और उन्हीं आईपीसी की धाराओं के तहत या किसी विशेष एक्ट के तहत बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो इट विल बी टेकिंग कॉग्निजेंस, इट विल बी हेल्पिंग इन इन्वेस्टिगेशन एंड इट विल बी जो है क्रिएटिंग ए चालान आल्सो। हमने आपको बताना भूल गए हैं कि जब ये इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ, चूंकि इसी को ही मालूम है कि क्या चालान है, क्योंकि चालान को तो ये पैकेज करके कोर्ट के लिए मार्क कर दे रहा है, तो ये ड्राफ्ट जो है चालान भी तैयार करके देगा। शायद थाना प्रभारी के बस में नहीं रहेगा वो कहे कि चालानी साक्ष्य है कि नहीं है, क्योंकि सिस्टम को तो वो सब कुछ मालूम है जो एसएचओ को भी नहीं मालूम है। What about long drawn cases in court and they just keep going on till a person dies? And that's where they will not be long drawn because the investigation will be controlled by the investigation app. वो आपको long drawn करने ही नहीं देगा। वो जहां देखिए, it is helping the police in requisitioning। तो सिस्टम कह रहा है कि आपको कहां से क्या चाहिए ये हम बताएंगे, आप तो सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर रखो। जैसे ही उसने डिजिटल सिग्नेचर किए, दैट विल बिकम अथॉरिटी अंडर सेक्शन 91 सीआरपीसी। हमारे एक मित्र ने कहा कि आप कुछ भी कर लो, हम नहीं मानेंगे आपका 91, तो क्या कर लेंगे आप। तो हमने कहा कि आप लोग इसलिए शेर बन रहे हैं क्योंकि हम जो है ना आपसे शालीनता से पेश आते हैं। हमें लगता है कि हम भी ब्यूरोक्रेट हैं, आप भी ब्यूरोक्रेट हैं, हम इस विभाग में, आप दूसरे विभाग में हैं, हम आपको सम्मान देते हैं, इसलिए आपके दिमाग खराब है। जब हम आपको 91 का वायलेटर मान के प्रोसिक्यूट करने लग जाएंगे, उस समय हमारी और आपकी हैसियत बदल जाएगी। आई विल बिकम द लॉ एनफोर्सर एंड यू विल बिकम द लॉ ब्रेकर एंड यू विल बी होल्ड अकाउंटेबल फॉर योर मिसकंडक्ट। आप 91 के वायलेशन के लिए जेल जाएंगे, और उतना ही पर्याप्त नहीं है। कानून ने तो बड़ा अच्छे प्रावधान किए हैं, चाहे पुलिस के लिए किए हो ना किए हो, बाकी कानून में तो बहुत अच्छे प्रावधान है। उसमें एक सेक्शन 93 और 94 जो है सीआरपीसी का है, वो कहता है कि जो साक्ष्य आपके दाएं बाएं ना हो जाएं तो आप जाइए और प्रीमिसेस को रेड करिए, सर्च करिए और सबको सीज कर लीजिए। तो हम इस बात को बड़े फक्र से हमेशा कहते हैं कि हम तो भाई हनुमान को भेजते हैं। यहाँ हमारे हनुमान कौन है? पुलिस वाले। पुलिस ऑफिसर जाएगा, वो उसको जो है ना सिस्टम 91, 93 और 94 का जो है वो सर्च वारंट कोर्ट से दिलाने में, क्योंकि हमने सब दरवाजे देखे हुए हैं, तो वारंट भी हम आपको दिलाएंगे, वारंट हम दिलाएंगे आपको। और उस वारंट के साथ जो है वो जाएंगे। जैसे हनुमान जी श्रीलंका में गए थे, तो फिर हनुमान जी को फिर तो श्रीलंका को थोड़ा वो जलाना भी चाहिए, नहीं तो वो हनुमान जी नहीं कहलाएंगे। वो फिर हनुमान जी बहुत शक्तिशाली हैं।
एक मिनट, इसी से रिलेटेड हनुमान जी चूंकि शक्तिशाली भी हैं, लेकिन उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि संजीवनी क्या है और पहाड़ क्या है, तो वो फिर वो संजीवनी को उखाड़ के ले आएंगे। तो जब संजीवनी को उखाड़ के ले आएंगे तो किसी व्यक्ति में दम नहीं होगी कि वो आगे चल के इंफॉर्मेशन ना दे। हमने सिस्टम को इतना कायर बना दिया है कि जो व्यक्ति वायलेट करने वाला है वो मूंछों पे ताव दे रहा है। एक समय आ गया है कि हम उसकी मूंछों के ताव को कम कर देंगे, तो और इसी कानून के तहत कर देंगे और बिना किसी के साथ जाएंगे, और उसमें हम अपने थाना प्रभारी को और किसी पुलिस ऑफिसर को एक्सपोज भी नहीं करेंगे।